Hello students. Hello, I am Sheila Salman. I am teaching chemistry. So now today I will discuss the class 10 first chapter chemical reaction and equation balancing equation. So the today topic is balancing. How to balance the chemical reactions. Much more students ask to me how to balance chemicals and give me ma'am please simple trick to how to balance this chemical reaction. So now today we discuss how to balance chemical reaction. Very simple trick. For example, that is one reaction, and now before balancing we discuss rule. First we observe metal. We observe metal and that metals balance both sides. Second, non-metal both side. Third is ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन. ठीक है, मतलब हम बैलेंस करेंगे पहले मेटल को दोनों साइड, फिर नॉन मेटल्स को दोनों साइड करेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. अब मैं ये रिएक्शंस को आपको करके दिखाती हूँ. ओके, नाउ सी फर्स्ट इन दिस साइड हम मैग्नीशियम इज अ मेटल, सो नाउ फर्स्ट बैलेंस द मेटल. So magnesium 3 in that side of magnesium 1. So now write 3 magnesium metals are balanced both side. So now this side nitrogen 2, in this side nitrogen 1 balanced. In this side how many oxygens? Only one oxygen in this side. 3 2 just 6. So 6. Okay. Oxygen are also balanced. In this side how many hydrogens? 12 hydrogens. So 6 2 are 12. In this side 12 hydrogen. In this side 6 2 ja 3 2 ja 6 hydrogen. 3 2 ja 6 hydrogen. Total 12 hydrogen. Balance our equation. This is a very simple trick. Now how to balance a chemical reaction? These rules you never forget. These rules. First observe metal, balance metal, then balance non-metal, then balance oxygen, then balance hydrogen. Sorry. Okay. Now second copper oxide react with ammonia, then form Cu plus N2 plus H2. Clear? See, copper oxide. In this side copper is metal, so first we balance metal. Copper 1, that side copper also 1, both are balanced. In this side nitrogen 1, in this side nitrogen 2, so balanced non metals. Then ऑक्सीजन को देखेंगे हम. In this side ऑक्सीजन 1, इस साइड कितना है? 1 है, बैलेंस है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6 है. अब ये 3 2 जा 6 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे. हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. बट सारा बैलेंस करने के बाद हम वापस में मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, क्या कुछ चेंज तो नहीं हुआ. तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कॉपर तो 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है. तो अब क्या करेंगे हम? 3 लगा दिए, तो यहाँ पे कॉपर 3 हो गए, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो हम यहाँ पे कॉपर को. अब फिर से देखो 3 कॉपर क्लियर, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन. हो गया क्लियर? ठीक है. सेकेंड, एल्यूमिनियम कार्बाइड react with water, then form CH4 मीथेन and एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ये फॉर्म होता है. ठीक है. Now again we start. First metal, aluminum is metal. So in this side aluminum 4. So in that side aluminum also 4. In this side carbon 3. Inside 1. So 3. Oxygen only 1. In this side 4. 4 3 is 12 oxygen. So क्या करेंगे हम यहाँ पे? सीधा 12 लिख देंगे. हो गया. अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? 24. 12 2 से 24 हाइड्रोजन हो जा रहा है. यहाँ पे देखो कितना है? 12. यहाँ पे कितना हो रहा है? 12. अब ये दोनों मिलकर कितना बना लिए? 24. हो गया हमारा बैलेंस. ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया.
फिर अगेन हम रिवर्स बैक करेंगे और हम चेक करेंगे हाउ मेनी एल्युमिनियम्स 4, दैट साइड 4, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, 4 3 12, हाइड्रोजन 24, हाइड्रोजन 4 3 12, 4 3 12, 12 12 24. क्लियर? बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप रूल को समझ लें तो इसको बनाने में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हम एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट 4th एग्जांपल, C2H6 plus O2 then form CO2 plus H2O. Okay. CO2 plus H2O. Now again start. No any metal present. So next part is non-metal. In this side carbon 2, in this side carbon 1. Balanced. In this side oxygen 2, in this side 2 2s are 4 and 5. अब ऑड नंबर पे है, तो जब भी ऑड नंबर पे आएगा हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इसका रूल है कि ऑड नंबर पे आ रहा है तो हम क्या करेंगे 5/2 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 2 कट गया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 ऑक्सीजन इस साइड। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया 3, अब कितना आ गया 7 आ गया। तो हम इसको चेंज करके क्या कर देंगे 7/2 कर देंगे। तो 2 2 कट गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 एंड 3 कितना हो गया 7। हाइड्रोजन कितना है 6 है, 2 2 6 हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे हम इसको जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इस फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में थोड़ा हमको ऑकवर्ड लग रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ट्वाइस C2H6 प्लस 2 2 कट गया तो कितना आ गया 7O2 प्लस, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा CO2 प्लस 3 2 जा 6 H2O हो गया। अब देखो यहाँ पे अगेन चेक 2 2 जा 4 कार्बन 4 कार्बन 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 6 हो गया। कितना आ गया 4 हो गया बैलेंस। तो ये हमारा इस तरह से बैलेंस किया जाता है इसको, ठीक है। हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट HNO3 sulfur react with nitric acid. When sulfur react with nitric acid then form H2SO4 plus NO2 plus H2O. बैलेंस, ठीक है। फर्स्ट नो एनी मेटल्स, सल्फर इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन ऑल्सो नॉन मेटल्स। 1 by 1 कर लेते हैं। फर्स्ट सल्फर इन दिस साइड 1, इन दिस साइड ऑल्सो 1, नाइट्रोजन इन दिस साइड 1, इन दिस साइड 1, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे कितना है 4 4 + 2 6 7, कितना आ गया यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे कितना है 3 है ना। तो वहां पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तब क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम नोट डाउन करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे तो 3 ही दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे कितना है हमारा 4 + 2 + 1 7। ठीक है, अब 7 करेंगे तो 7/2 तो होगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें कुछ ऐसी संख्या यूज करते हैं, कुछ ऐसा नंबर यूज करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नॉट जस्ट सी, बिकॉज 7/2 नहीं होगा। 7/2 तब करते जब यहाँ पे 2 रहता 2 2 कट जाता है ना,
तो यहाँ पे हम लोग 2 तो रख नहीं सकते, 3 रख देते हैं। चलो 3 रखा हमने। अब हमने 3 रखा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन। अच्छा ये 3 हो गया तो नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। कर दिया हमने। अब नाइट्रोजन वहाँ पे 3 हो जा रहा है, तब यहाँ पे काउंट करो 4 3 2 6 प्लस 1 कितना हो गया, ये 10 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पे 9 ऑक्सीजन हो रहा है, अभी भी अनबैलेंस है। अब क्या करेंगे, तो इसको एक नंबर और बढ़ा दें। ऐसे नंबर बढ़ाते जाएंगे। अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, बस ये 2 चीज को हम चेंज करते चलेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन इन दिस साइड, 4 8 1 13 हो गया, फिर गड़बड़ हो गया है ना, बढ़ते जा रहा है, 13 ऑक्सीजन हो गया। अभी क्या करें, अभी भी अनबैलेंस है, आगे करते हैं, एक नंबर और बढ़ाते हैं, 5 यहाँ पे भी बढ़ा देते हैं, 5 कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया देखो, 4 2 1 15 है सर, है ना, 15 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 14 प्लस 1 15 ऑक्सीजन हो गया हमारा बैलेंस। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आपको बैलेंस नहीं हो रहा है, 7/2 फ्रैक्शन तब रखोगे जब वो कट सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे, धीरे 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 अपने आप यहाँ पे एक समय के बाद वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको बैलेंसिंग को कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये था एक तरीके का बैलेंस। मैं एक और बैलेंसिंग करने का आपको तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल है वो भी, और वो भी मेथड आप दोनों में से कोई एक मेथड यूज कर लो, आपको जो मेथड बेटर लगता है आप उस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, NH3 plus O2 then form NO plus H2। ये एक रिएक्शन है जिसके आगे मैं कोफिशिएंट लगा देती हूँ BCD। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ये रूल को पहले समझ लो अच्छे से। पहले मैं नाइट्रोजन लेती हूँ, सॉरी नाइट्रोजन। अब दोनों साइड नाइट्रोजन, इस साइड नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। यहाँ पे नाइट्रोजन के आगे क्या है, C, और इस C इक्वल टू क्या है, 1। मतलब एक नाइट्रोजन इस साइड भी, एक नाइट्रोजन इस साइड, हमने इसे 1 1 रखा। ठीक है, अब क्या है, थर्ड हम लोग हाइड्रोजन देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 3A। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 3A हो जा रही है ना। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2D। तो यहाँ पे इसको बैलेंस, अब इसको इस तरह से करते हैं, A इज इक्वल टू C, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड 3A है, उस साइड क्या है, 2D है। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, अब ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन कितना है, 2B है। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, इस साइड जो ऑक्सीजन है ये NO है ना। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये तो ठीक है, CA इक्वल टू 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2D हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2B। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी, ऑक्सीजन यहाँ पर भी, जिसको हम क्या लिखेंगे, C। यहाँ पे एक ही है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या है, एक है, C प्लस D। ठीक है, अब ये एक तरीका है इसको बैलेंस करने का। हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबके आगे कोफिशिएंट लिख देंगे। अब हम पहले बराबर करेंगे, नाइट्रोजन इस साइड कितना है, A है, और उस साइड भी क्या है, C है, एक 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 है। यहाँ पे देखो, उसके बाद हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इसमें किस तरफ कितना है, 3A है, इस साइड हाइड्रोजन कितना है, 2D है। वो दोनों बैलेंस करना है हमको। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 2B है, इस साइड 12 2B है, इस साइड कितना है, C और D है। अब हमको क्या करना है, कोई भी एक नंबर को 1 मानना है। लेट अस एनी 1 नंबर में भी हमने इसको 1 माना, तो A 1 है, A इक्वल टू 1, C इक्वल टू ऑल्सो 1। अब C की वैल्यू हमको पता चल गई 1 है। अब यहाँ पे हम C की वैल्यू पता है, यहाँ से इनकी वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे 3, A की वैल्यू कितनी है, 1 2 D।
तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2d है, सॉरी 2b है, और 2b मतलब यहाँ पे कितना हो जा रहा है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना है 3/2, निकाल लो यहाँ पे 2 + 3 तो कितना आ जाएगा 5/2, ये 5/2 है। अब इस 2 को इधर में ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख देती हूँ, 2 को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4 आ गया। सबकी वैल्यू हमने निकाल ली है। नाउ पुट द वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे निकाली हमने 5/4, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3/2, ठीक है। लिख दो सबकी वैल्यू, लिख दिया हमने सबकी वैल्यू। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, मल्टीप्लाई करो, कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे कि कट जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 4 है और ये 2 है, दोनों इवन नंबर है, और जिसमें जो बिगेस्ट रहेगा हम उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 4 से मल्टीप्लाई करते चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n3, यहाँ पे 4 कट गया तो कितना आएगा 5O2, वहाँ पे कितना आ जाएगा 4NO, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6H2। अब आप काउंट कर लो सारे बैलेंस है कि नहीं। देखो 4 नाइट्रोजन 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो रहा है 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, 4 + 6 10 हो गया बैलेंस्ड। ये भी एक तरीका होता है बैलेंस करने का, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताती हूँ इसका। C4H10 + O2 = CO2 + H2O। Same process. Now write the coefficient. ABCD फिर से लिख दिया। अब फिर से हम कार्बन लेंगे। इस तरफ कार्बन कितने हैं, इस तरफ कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, सॉरी C4 है ना, इस तरफ कार्बन कितने हैं 4A, इस साइड कार्बन कितने हैं C है। अच्छा इस साइड कार्बन अब हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 10A है, इस साइड हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है 2D है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2B है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2C + D है ना, ऐसे ही है। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हम किसी एक वैल्यू को 1 मानेंगे, किसी एक वैल्यू को 1 मानते हैं। जो सिंगल फॉर्म में रहता है मोस्टली ज्यादा में रहता है, यहाँ पर भी C है, देखो यहाँ पर भी C, और ये सिंगल फॉर्म में C है, तो हम इसी को C को मानते हैं। लेट अस C = 1। अब C = 1 तो 4A = 1 है, तो A = क्या हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि C = 1 मान रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4A की वैल्यू A आ जाएगी। C = 1 और ये इसके इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 4 × 1, तो कार्बन की वैल्यू मतलब इसके इक्वल है ना, हाँ इस पूरे के इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे के इक्वल क्या हो जाएगा 1, सॉरी C को नहीं, हम अगर A को 1 मानते हैं तो A को अगर हम लोग 1 लेते हैं, C को ना ले, A को ही 1 ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो A = 1 लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4 × 1 है ना, 1 ले लिए, कितना है 4, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। समझ में आ रहा है, हमने A की वैल्यू यहाँ पे क्या ले ली 1, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा C की वैल्यू 4 होगी। अब C की वैल्यू निकल चुकी है और A की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे पुट कर दो,
10 इंटू 1 इक्वल टू 2d। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 1 ज़ा 5, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ गया। अच्छा, अब b की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 5 है ना, 5 ही होगा, नहीं ये तो d है ना 2b, सॉरी हाँ, d की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5 निकाल दी है। आप निकाल लो, 4 2 से 8 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 2, कितना आ जाएगा 13/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/2। अब सारी वैल्यू हाँ पुट कर दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे b 13/2, ठीक, c की वैल्यू कितनी है 4 और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। फिर वही बात, फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जहां से पूरा कट जाए। तो अंडरस्टूड है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2c4h10 प्लस 2 टू कट 13O2, देन 4 2 ज़ा 8CO2 प्लस 5 2 ज़ा 10, अब काउंट कर लो 8 20 हाइड्रोजन्स 26 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो गया 26, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को। मैंने 2 मेथड आपको बताया, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है, नाउ यू कैन आस्क मी, ओके, थैंक यू।